मैं जरा बात करना चाह रही हूँ, परमजीत सिंह मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि रहनुमा हैं सिख फॉर जस्टिस के। बहुत शुक्रिया आपका सर, आप प्रोग्राम में आए उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। आपको प्रोग्राम में लेने का असल मकसद बेसिकली ये है कि आपका जो स्टेटमेंट आपकी तरफ से आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। दहशतगर्दी बलूचिस्तान में हुई, आपकी तरफ से स्टेटमेंट आता है कि ट्रेन हमले में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ इन्वॉल्व है। यही मौकफ पाकिस्तान का भी, आपके पास डिटेल्स क्या है सर? दस देना चाहना है कि सिक्स फॉर जस्टिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰॉ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਮਿਸਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ 4 ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਯੂਟਿਊਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਈਵਨ ਕੁਝ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ वो इन्वॉल्व है कि जो पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹੀ इसके बयान। सर आप लोगों की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है ना वो बड़ा हॉरिबल है। आप कह रहे हैं कि अगर भारत का एहतसाब नहीं किया गया, इसको नहीं रोका गया तो अगला हमला और भी ज्यादा मासूमों की जानें लेगा। तो ये स्टेटमेंट मौजूदा हालात और वाकयात को और भारत की तारीख को देखते हुए दिया है या कोई इंफॉर्मेशन मौजूद है आप लोगों के पास? देखो इस दे विच इन्फॉर्मेशन शामिल हैगी है। इन्फॉर्मेशन शामिल इदा हैगी है कि तुसी यूके दे विच ਰੌ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌ ਦੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੌ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੌ ਕਿੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। तो किसी भी तरह सिखां दी आवाज जिहड़ी आ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਸੈਕੰਡਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ उन्होंने जब एडमिट कर लिया फिर अपन केड़ा एविडेंस चाहिए। सर जैसे कि आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान ने भी कई बार दुनिया को बताया है कि भारत किस तरह से दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। आप गुज़िश्ता साल जो कैनेडियन वज़ीर आज़म है उन्होंने भी खालिस्तान तहरीक के जो हामी हैं हरदीप सिंह निज्जर, उनके कत्ल की इंडियन साजिश में इंडियन शहरी को गिरफ्तार किया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया और अमरीका में भी इंडियन खुफिया दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग नेटवर्क सामने लाया। किस तरह मोदी सरकार को कटहरे में लाया जा सकता है सर, कैसे लाएं? देखो असी तो ऑलरेडी कचहरे च खड़े किए हुए हैं। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, सारी दुनिया ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट कर की रही। सर मुझे बताइए भारत के अंदर इस वक्त क्या सूरत हाल है? कश्मीरियों को रोजाना शहीद किया जा रहा है, लेकिन जो तहरीक है तहरीक आज़ादी वो अब भी जारी है। खालिस्तान तहरीक और दीगर जो मामलात हैं वहां पर क्या सूरत हाल है भारत की? देखो हिंदुस्तान की सूरत हाल यह है कि हिंदुस्तान नूं साडे कोल सिखां दे कोल मुल्क नहीं हैगा, साडे कोल तंजीमां आ ते साडे कोल जज्बा आ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 1,50,000 ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟੇ ਆ। 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੇਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਰ ਓਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਓ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬੰਦੇ ਮਰਵਾਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਆ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪ੍ਰੋ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। और उन्होंने यूट्यूबर्स जेडे मीडिया वाले वो एडमिट कर रहे हैं टीवीआर पे बैठ। सर, आपकी तंजीम ने भारत से अलहदगी के लिए 23 मार्च को रेफरेंडम का ऐलान रखा हुआ है, तो उसकी कामयाबी की क्या उम्मीद है, क्या चांसेस हैं? देखो सानू कामयाबी दी बिल्कुल उम्मीद हैगी है ਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ VOTING ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ VOTING ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ VOTING ਚਲਦੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਰੋਡ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆ, खालिस्तान बनेगा तो कश्मीर की आज़ाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका परमजीत सिंह, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और आप कह रहे हैं कि जो रेफरेंडम का ऐलान आपने किया हुआ है उसकी कामयाबी के भरपूर इम्कानात मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना एहसान साहब साथ मौजूद हैं, सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब साथ मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों के एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। राना साहब, ज़रा आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। सर, APC की बात हो गई है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से, अब ये कब तक बुलाया जाएगा इसको, और इसमें जो अहम निकात हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस क्या होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, APC जल्द बुला ली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने इसका ख़ुद कल जब वो कोयटा का विज़िट कर रहे थे तो इसकी जो है इसके बनाने की और इसकी ज़रूरत समझी है कि हमें जो है दोबारा मिलके बैठने की ज़रूरत है। और देखें, एजेंडा तो तय है, वो जो 14 नुकात जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक हैं, उसमें बलूचिस्तान रिकन्सिलिएशन भी है, उसमें फॉलोअप है केसेस का जो काउंटर टेररिज्म के हैं, उसमें CTDs के फ़ाल होने की बात है, मदरसास की रजिस्ट्रेशन की बात है, बलूचिस्तान की रिकन्सिलिएशन की बात है और दीगर नुकात हैं। तो उसी के ऊपर ही हमें देखना है कि जो हमने 14 नुकात नैब के तय पाए थे, क्या उसके ऊपर प्रोग्रेस हो रही है, नहीं हो रही, उसके ऊपर सारी जमातों का कितना रिजॉल्व है आज के दिन के अंदर, या उसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ों को जो है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो डिस्कस होनी चाहिए। देखिए, उससे बढ़ के मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान हो, KPK हो, इधर हमें सियासी पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए और इस सीरियस मामले के ऊपर हमें जोड़ने की बात करनी चाहिए। हमें असल जो लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। देखें, दहशतगर्दी आपके बॉर्डर और आप दुरुस्त कह रहे हैं, ये संजीदगी की ज़रूरत सबको है। सर मुझे ये फरमाइए, राना साहब, ये फरमाइएगा कि क्या इस APC के लिए ये इम्कान कहीं भी मौजूद है कि इमरान खान को इसमें शिरकत के लिए जेल से लाया जाए? देखें, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। ऑल पार्टीज का मतलब है कि सब जमातों की नुमाइंदगी होनी चाहिए है। इसका ये मतलब नहीं है जो सजा याफ्ता लोग हैं उनको इंडिविजुअल्स की कॉन्फ्रेंस नहीं है। PTI जो है ये ऑल लीडर्स कॉन्फ्रेंस नहीं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है। और मेरे ख्याल से ये इसको जो प्रोपोगेट कर रहे हैं लोग, वो भी सियासत चमका रहे हैं और वो भी इसको एक APC बनाने से पहले एक नए तनाज़े का रंग दे रहे हैं जो कि शो करता है कि उनकी सीरियसनेस। मेक सेंस सर, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, तमाम पार्टीज की नुमाइंदगी इसमें होनी चाहिए और PTI की तरफ से गैर मशरूत शिरकत की बातें भी आ रही हैं सामने। तो मेहमन साहब, जरा सर इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि ये जो आप लोगों की तरफ से APC में शिरकत का ऐलान किया गया है, ये गैर मशरूत है या खान साहब की रिहाई या उसमें मौजूदगी इसमें शर्त के तौर पर शामिल है? क्योंकि दोनों तरह के स्टेटमेंट्स PTI की तरफ से आ रहे हैं, इसलिए मैं क्लैरिटी के लिए आपसे सवाल कर रही हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यका नाबुदो व यका नस्तईन। देखिए, इस तरह है किरण जी के इमरान खान ने बहुत पहले कहा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस आती हैं इन द नेम ऑफ पाकिस्तान, वी आर ऑल देयर फॉर पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल ये आ जाता है कि इसके अंदर बैठना किसको चाहिए, किसको नहीं बैठना चाहिए। देखिए, एक बात याद रखें, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हो रही। ये पाकिस्तान की बका या पाकिस्तान की सलामती का एक प्रॉब्लम है जिसके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होंगे। ऑब्वियसली ये डिसीजंस जो होते हैं ना, ये हाईएस्ट लेवल पे होते हैं। इसमें नॉर्मली जो होता है, सारे जो जमातों के वो लोग बैठे होते हैं जो डिसीजन मेकर्स हैं। मैं या राना साहब, हम लोग नहीं बैठे होंगे। वी आर नॉट द डिसीजन मेकर्स, ठीक है। वो लोग बैठेंगे जो डिसीजन ले सकते हैं। अब उसके लिए एक नेचुरल, मेरी नजर में, मैं यू कैन से कि आई एम बायस्ड, लेकिन मेरी नजर में एक शख्स है जिसको पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जमात का लीडर है और उसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलेशन फॉलो करती है। अगर वो कुछ कह देता है, लोग उसकी बात मानते हैं, एज अपोज टू मेरी या गौहर साहब की या किसी और की इमरान खान की बात मानी जाती है, ठीक है। सो मेरे लिहाज से एक अक्ल या एक शऊर ये कहती है कि उस बंदे को लाके बिठाओ ताकि जो डिसीजंस हो वो उस लिहाज से हो। ये जो 14 पॉइंट्स हैं, ये वही पॉइंट्स हैं जो 2021 में रिवाइज किए गए थे। और एक बात याद रखें, ठीक है, ये वो 14 पॉइंट्स है कि जिसके ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जिस चीजों के ऊपर एक्ट कर रही थी, इस दौरान में हम लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरह कभी विकी लीक्स की तरह ये नहीं कहा कि आप लोग ड्रोन हमले करते रहो, हम लोग नहीं करेंगे। हमने एक ड्रोन हमला नहीं होने दिया। जब एक ड्रोन हमला नहीं हुआ तो आपने देखा इस दौरान में सबसे कम टेररिस्ट अटैक हुए थे। और यही वजह थी कि उस जमाने में पाकिस्तान वाज अमंग द टॉप 10 टूरिज्म डेस्टिनेशंस आ गई थी बनिस्बत इसके कि टॉप 2 टेररिस्ट। इससे पहले कि मैं आपको इस बात पे आपसे सवाल करूं, मैं आपकी बात से जो बात समझ सकी हूं, जी मैं आपकी, क्योंकि हम काफी आगे बढ़ जाएंगे, आपने जो बीच में एक बात कर दी है ना कि खान साहब क्योंकि पॉपुलर लीडर है, अवाम उनकी बात सुनती है, तो उनका यहाँ पर होना जरूरी है। तो मैं आपकी बात से क्या ये समझ पाई हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई भी ऐसा केपेबल लीडर मौजूद नहीं है, या बैरिस्टर गौहर साहब अगर एपीसी में बैठते हैं और अगर वो किसी फैसले की हिमायत कर देते हैं तो क्या खान साहब इस चीज का साथ नहीं देंगे? क्या ये पीटीआई के अंदर खौफ मौजूद है? क्या ये डर मौजूद है कि जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब बजाते खुद ही आए, वो ही एपीएस को आकर जो है वो चेयर कर रहे हो या वही साथ बैठ रहे हो पीटीआई की तरफ से? देखिए, इस तरह है कि अगर आप कहते हैं कि ठीक है कामरान मुर्तज़ा साहब जेयूआई की तरफ से बैठेंगे, मौलाना साहब नहीं बैठेंगे क्योंकि कामरान साहब वो डिसीजन नहीं ले सकते जो मौलाना साहब ले सकते हैं, तो फिर हम कामरान साहब को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि सर, उनकी और आपकी सिचुएशन में फर्क ये है ना, आपका लीडर इस वक्त जेल में है, उनके लीडर आजाद है। देखिए ना, सुन ले, बात आजादी और जेल की नहीं है। बात इस वक्त है कि इस इश्यू की है कि इस इश्यू में किस लेवल की लीडरशिप बैठना चाहिए। अगर हमने पाकिस्तान के लिहाज से करना है तो हम लोगों ने लोगों को कहां से ला के उनके अंगूठे लगवा, फिर उसके लिए सब दरखास्त देनी पड़ेगी ना, पैरोल पे रिहाई निकलवा दी है। तो क्या खान साहब दरखास्त देंगे? देखिए, अगर आपने देखिए, सुने, इट इज अप टू द गवर्नमेंट टू डिसाइड, अगर मुझे मौका दे उनको हाउ सीरियस आर दे कि ये वाकई कुछ करना चाहते हैं इस मुल्क के लिए या नहीं करना चाहते हैं। और या फिर आप मुझे ये बता दें ना, पेरोल पे रिहाई के लिए खान साहब दरखास्त देंगे या नहीं, फिर मैं राना साहब से जवाब लूंगी। मेरे लिहाज से मैं इमरान खान की जगह मैं कभी दरखास्त नहीं दूंगा, मैं कभी नहीं दूंगा। अगर इनको जरूरत है और ये समझते हैं कि इस मुल्क के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये इनको करना चाहिए।